وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما. معزز اسلامی بھائیوں، بزرگوں،
نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل قدر خواتین اسلام، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسانوں کے اوپر ایک ایسا دور نہیں آیا کہ جب انسان قابل ذکر ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، نہ ہم تھے، نہ ہماری حیثیت تھی، نہ ہمارا وجود تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہی کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ پھر دونوں کو جنت کے اندر داخل کیا۔ دخول جنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ دونوں کے دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ پوری جنت آپ کی ہے، جنت کی ساری عشائشیں آپ کی ہیں، ساری نعمتیں آپ کی ہیں، ساری سہولیات آپ کے ہیں۔ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، میری ایک بات مان لینا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اگر اس درخت کے قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظالم ہو جائیں گے، مجرم ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے دونوں کے دونوں کو بہکایا، پھسلایا اور وہ کام کرایا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو یہ دونوں کے دونوں اس جگہ سے نکال دیے گئے جہاں پر یہ تھے۔ نافرمانی کے سبب اللہ نے جنت سے پھر نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم نصیحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب اب یہاں سے نیچے اتریے، زمین میں جائیے جہاں کے لیے آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو اور ابلیس کو، سب کو کہا آپ زمین میں چلے جائیں۔ اور اس کے بعد بڑی اہم نصیحت کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب آپ زمین پر آ تو گئے ہیں، زمین پر آپ اپنی منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کے طور و طریق میرے اشارے پر ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو نصیحتیں، جو ہدایتیں آپ کے پاس آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کو مانے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
बेहतरीन ज़ाब्ता, बेहतरीन उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने दे करके इंसानियत को इस रुए जमीन पर बसा दिया। एक तरफ ये बात जहन में रखें, हालत हाजिरा और मुसलमान, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत कसीर तादाद है। हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात अगर हम करते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमान कसीर तादाद में इस रुए जमीन पर पाए जाते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत है, लेकिन हालात बड़े नागुफ्ताबे हैं। इस रुए जमीन को, इस हिंदुस्तान को, इस जमीन को आजाद कराने के लिए हमने, हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून तक बहाए, लेकिन हालात इतने बद से बदतर हो गए कि हमें अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करना पड़ता है। आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज हमारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। आज हमारे ऊपर हालात के पस मंजर में मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, जो कोई भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है, फबिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह की इजाजत से होती है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन्नास, और जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, हालात नागुफ्ता बे होते हैं, वो तुम्हारे आमाल के नताइज होते हैं, तुम्हारे आमाल और तुम्हारे करतूत के सिला होते हैं। आज हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी नहीं है। हमारा नाम मुसलमानों जैसा, हमारे रजिस्टर के अंदर, आधार कार्ड के अंदर सारे कागजात हमारे मुसलमान जैसे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे आदात, हमारे आतवार, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारे गुफ्तार, हमारे हरकत व सकनात, हमारे इबादत व मामलात गैरों से भी बदतर हैं। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद हमारे बदआमाली के नताइज यहां तक पहुंच गए कि आज हम मुसलमान होने के बावजूद हमारे अंदर इस्लामी शिआर नहीं है, इस्लामी तमद्दुन नहीं है, इस्लामी तशख्खुश नहीं है। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, आमाल के एतबार से हमारे अंदर इस्लाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस रुए जमीन पर भेजते हुए हमारे जीने का मकसद बताया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इस इबादत के राह पर चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को भेजा। हमारे और आपके लिए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन उसवा है। हम ऐसी कौम नहीं है जिसमें कि कोई उसका रहबर ना हो, कोई रहनुमा ना हो, कोई आइडियल ना हो। हम ऐसी कौम है जिस कौम का नबी है, रहबर है, हिदायत की राह पर चलाने वाला पैगंबर है, उनके नक्शे कदम को हिदायत की राह करार दी गई है। लेकिन अफसोस यह है कि आज हम मुसलमान अपने नबी की इत्तिबा, अपनी शरीयत की पैरवी के बजाय आज हम गैरों की इत्तिबा और पैरवी करने में फख्र और खुशी महसूस करते हैं। अभी आज जनवरी की 2 तारीख है, कल का दिन गुजरा जनवरी की 1 तारीख थी।
दिन वही है, रात वही है, समा वही है, हालात वही हैं, हम वही हैं, आप वही हैं। नया साल के नाम पर जो बिदात व खुराफात और जो गैरों की नक्कालियां मुस्लिम समाज के नौजवानों, मुसलमानों और मुस्लिम लोगों के जरिए से हो रही हैं, उसको बयान करना मुमकिन नहीं है। नया साल की खुशी, नया साल का जश्न और नए साल पर पिकनिक, ये आज हम मुसलमानों के अक्सरियत और नौजवानों ने जिस अंदाज में मनाया और मना रहे हैं, क्या ये हमारी शरीयत का हुक्म है? ये लफ्ज़ पिकनिक मतलब क्या है? बाहर जाकर के खाना पकाना, खाना। बात गौर से सुनिएगा, शरई तौर पर ऐसे अमल में कोई कबाहत नहीं है। शरीयत इतना तंग नजर भी नहीं है कि हमें खुशी होने के मौके में असर न करे। शरीयत ने हमें खुश रहने का मौका दिया है। अगर कोई शख्स, कुछ अहबाब, कुछ दोस्त यार मिल करके बाहर जाकर के तफरीह के लिए बाहर खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे अंदाज में खुशी मनाते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये काम आप 1 जनवरी को ही करें, यहां पर शक होता है। गैरों के साथ मिलकर के करें, यहां पर एतराज होता है। सैर व तफरीह करने की अल्लाह कुरान में खुद कहता है, कुल सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। आप सैर करो, जमीन में घूमो फिरो, देखो, नजारे देखो, मुकज़्ज़िबीन के साथ क्या अंजाम हुआ। आप सैर व तफरीह कर सकते हैं, घूमने फिरने की, बाहर जाने की इजाजत है शरीयत के अंदर। शरीयत के दायरे में रहते हुए आप खुशी मना सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी कौमें इस तारीख को, इस दिन को अपने लिए खुशी का दिन मानती है और हम उनके सहयोगी और उनके मददगार और मुआविन बन करके हम भी उसी के रंग में रंग जाते हैं, तो हदीस सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो हमी में से है। किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करना ये सरासर हराम है और ये गैरों के तरीके हैं, गैरों की नक्काली शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दी है। एक तो होता है सादगी के साथ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अहबाब ये कह सकते हैं कि हम बहुत सादगी के साथ गए थे, लेकिन यहां गैरों की मुशाबिहत है। लेकिन इसमें कितने खुराफात हैं, हमारे और आपकी नजरों से ये बात पोशीदा नहीं है। लोग नए साल की खुशी में घर से बाहर पकवान पकाने के लिए जहां पर वो हलाल चीजें लेकर के जाते हैं, वहीं पर हराम की आमेजिश होती है। शराब का दौरा चलता है, डीजे गाने बाजे का वहां माहौल बनता है और इस तरह की खुशियां मनाई जाती हैं। शरीयत इसकी इजाजत हरगिज नहीं देती है। और इस काम के लिए आप ये हरगिज ना सोचें ये मौलाना बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं जो नौजवान लोग इस तरह कर रहे हैं। आप, हम सब जिम्मेदार हैं। हमारा बेटा जा रहा है हमारी नजरों के सामने, हम देख रहे हैं, खुश हैं, खामोश हैं। हमारी बेटियां जा रही हैं, हम खुश हैं, खामोश हैं। हमारा पड़ोसी जा रहा है, हम देख रहे हैं, हम खुश हैं, खामोश हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, हमने तुम्हें बाप बनाया था, क्या तुम्हारी यह जिम्मेदारी थी कि तुम अपनी औलाद को इस तरह से बेदीनी के रास्ते पर लगा देते? आज हमारी औलादें हमारी नजरों के सामने, हम दीनदार हैं, हम नवाजी हैं, हम परहेजगार हैं, लेकिन हमारी औलाद क्या कर रही है? हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे रिश्तेदार जो आज इस काम के लिए हम खुश हैं, मना नहीं करते। बच्चे हैं, खुशी मनाने दो। कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जाने दो। लेकिन ये बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले आपके हैं। आपसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेगा, हमने तुमको बाप बनाया था, तुमको सरपरस्त बनाया था, तुमको जिम्मेदार बनाया था, तुमने क्या हक अदा किया है?
आज हमारे हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ लोगों के रवैये किस तरह से हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें होश के नाखून लेने के बजाय हम उन्हीं के तरीके पर, उन्हीं के रंग में रंग करके हम आज अपने इस्लाम को, अपने दीन को, अपनी शरीयत को फरामोश कर रहे हैं। हमारे पास एक पाकीज़ा दीन है, एक पाकीज़ा शरीयत है, एक ज़ाब्ता हयात है, दस्तूर जिंदगी है, कुरान और हदीस है। हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, ना कि हमें गैरों के तरीकों की नक्काली करते हुए उनकी रविश पर चल करके अपने मजहब और दीन को बदनाम करना था। जहां एक तरफ साले 9 की ये खुराफातें हैं, वहीं पर रोजमर्रा जिंदगी के हालात में देखें मुसलमानों की हालत क्या है। आज हम मुसलमान क्या उसी बात के ऊपर हम अमल पैरा हैं जब हमें दुनिया के अंदर भेजते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया था, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो मेरी तरफ से हिदायत आएगी, जो आदमी भी हमारी हिदायत की पैरवी करेगा, उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आज क्यों हमें खौफ और हरास की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? क्यों आज हम परेशानी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं? हम आज जबान नहीं खोल सकते। मीडिया पर एक गैर आदमी कुछ भी कह देता है, उसकी कोई पकड़ नहीं होती है। एक हम हैं, आप हैं, एक मुसलमान का शख्स मुसलमान नाम लेकर के अगर कोई अच्छी बात भी कहता है तो उसकी गिरफ्त होती है। क्यों है ये खौफ और हरास वाली जिंदगी? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। लेकिन हालत तो यह है कि आज हम खौफ व हरास की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमने शरीयत की इत्तिबा नहीं की। आज हमारे मोहल्ले के अंदर मुसलमानों के कितने घर हैं? एक एक मोहल्ले के अंदर 100 घर हैं। एक मस्जिद के मातहती में 100 घर हैं, लेकिन नमाजी कितने हैं? 100 घर में 5 नमाजी मिलेंगे आपको। परसेंटेज आप लगा लीजिए। आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है, हमारे लोगों का क्या हाल है, हमारी माँ और बहनों का क्या हाल है। आज हम अपनी औलाद की खुद तरबियत नहीं कर रहे हैं। आज हमारी माएं बहनें औलाद की तरबियत नहीं कर रही हैं। माओ ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, बापों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। आज हमारा समाज गैरों से भी बदतर होता चला गया। आज हमारे मोहल्ले के अंदर मस्जिदें बड़ी शानदार खूबसूरत बनी हुई हैं, लेकिन नमाजी का आता पता नहीं है, क्योंकि आज हमने ये समझ लिया है नमाज पढ़ने से आदमी मुसलमान होगा। ये लोगों की बातें, आलिमों की बातें हैं। हमारा समाज तो हमें नमाज पढ़े बगैर मुसलमान मानने के लिए तैयार है। आज हम नमाज नहीं पढ़ते तब भी हमारे अकीके हो रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते तब भी हमारे जनाजे की नमाज हो रही है। आज हम नमाज नहीं पढ़ते तब भी हमारी शादी ब्याह हो रही है। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारे सारे तकरीबात हो रहे हैं। इस मुसलमान का एक आलिम मिंबर पर बैठ करके, मिंबर पर खड़े होकर के हमें मुसलमान ना माने, समाज तो हमें मुसलमान मान रहा है, इसलिए हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। गलती किसकी है बताइए? उलमा की कि समाज की? आप समाज वालों ने बेनमाजियों को सर पे बिठाया है, बेनमाजियों को मुसलमानों से ज्यादा, नमाजियों से ज्यादा अहमियत दी है। एक बेनमाजी है, उसकी हम आओ भगत करते हैं, आओ बैठो, उनके लिए कुर्सियां हाजिर हो जाती हैं, उनके सामने सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन आदमी बेनमाजी है। हमारा एक नेता, आप मुसलमान का कोई आदमी सियासी काम कर रहा है, बेनमाजी है, वो हमारा खैर खा हो ही नहीं सकता है, दीन का खैर खा हो ही नहीं सकता है, इस्लाम का खैर खा हो ही नहीं सकता है। जो अपना खैर खा नहीं है वो दीन का कहां से खैर खा? ऐसे लोगों के लिए आज हमारी नजरें इज्जत से झुकी हुई हैं। वो हदीस बड़ी मशहूर हदीस है कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि किसी को बुराई करते हुए देखे तो उसे जरूर रोके। मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, हाथ से रोके। ताकत नहीं है फबे लिसान ही, जबान से रोके। अगर उसकी भी ताकत नहीं फबे कल्ब ही, दिल से बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये अदना दर्जा। आज हमारी हालत तो ये है कि हम दिल से भी बुरा नहीं जानते। आज हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं? कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा, स्कूल में पढ़ता है बच्चा, नमाज कैसे पढ़ेगा ये? और वो भी ठंडी के दिन में नमाज कैसे पढ़ेगा? इतनी ठंड है, इतनी सख्त ठंडी में कैसे नमाज पढ़ेगा? फजर में हम उठाना गवारा नहीं करते। एक नमाजी बाप का हाल यह है कि बाप नमाजी है लेकिन अपने बच्चों को नहीं उठाएगा। उनके बच्चे फजर में सोए हुए हैं,
देगर औकात में नमाज नहीं पढ़ रहा है, बाप कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज हमारे समाज का हाल देख ले, आज हमारे समाज में हम मुसलमानों की हालत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आज जो हमारी हालत है हमारे बदअमाली के नतीजे में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान करीम के अंदर खुद ऐलान है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीन नास, लोगों के करतूत के नतीजे हैं ये मुसीबतें। और अल्लाह ने उसूल बता दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आज हमारी हालत ऐसी की ऐसी है, बद से बदतर होती चली जा रही है। सुधार क्यों नहीं हो रहा है? जमीन अल्लाह की, हम अल्लाह के, हवा अल्लाह की, पानी अल्लाह का, सारी चीजें अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह हमारी सुन क्यों नहीं रहा है, हमारी इस्लाह क्यों नहीं कर रहा है? अल्लाह ने खुद कुरान में कह दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत के बदलने की फिक्र न करे। आज हमें अपनी हालत की फिक्र की, आज हमें अपनी हालत के बदलने की कोई फिक्र नहीं है कि हम इस्लाह करें अपनी, हम नमाजी बन जाएं। आज इस मजलिस में तौबा करके उठें। हर फर्द अगर इस्लाह चाहते हैं, दुनिया की कामयाबी आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, माए बहने तौबा करके आज की मजलिस में उठें कि आप खुद नमाजी बनेंगे, अपनी औलाद की सही तरबियत करेंगी, अपने आप की इस्लाह, अपनी औलाद की इस्लाह करेंगे। एक समाज, हम दीनी समाज, दीनी मुआशरा बनाएंगे जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की बात चलेगी, कुरान और हदीस की बात चलेगी, इताअत और इत्तिबा वाला माहौल होगा। जब तक हम इत्तिबा और इताअत को लाजिम नहीं पकड़ेंगे, हिदायत के लिए यही दो चीजें हैं, इत्तिबा और इताअत। इत्तिबा किसको कहते हैं और इताअत किसको कहते हैं, ये दो बातें मैं आपको समझा करके अपनी बात खत्म करूंगा। इत्तिबा किसी के नक्शे कदम पर चलना, जैसा वो करता है हम वैसे ही करें, जैसे उसके बाल हैं वैसे ही हम अपने बाल रखें, जैसे उसकी दाढ़ी है वैसे हम अपनी दाढ़ी रखें, जैसे उसका लिबास है वैसे हम अपना लिबास पहने, जैसे वो चलता है वैसे ही हम चलें, जैसे वो उठता है वैसे ही हम उठें, जैसे वो कहता है बोलता है वैसे ही हम बोले। इसको इत्तिबा कहते हैं। और किसकी करनी है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल और नमूना है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगों, ऐ नबी आप कह दीजिए लोगों से, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे हालात बदल दे, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। नबी की इत्तिबा होनी चाहिए। नबी की इत्तिबा का जज्बा समाज के अंदर आ गया। देखिए वो समाज देखते देखते इस्लामी समाज बन जाएगा। हमारे नबी का लेन देन कैसा था, हमारे नबी की बोलचाल कैसी थी, हमारे नबी का उठना बैठना कैसा था, हमारे नबी के तौर तरीक कैसे थे, हमारे नबी की जिंदगी गुजारने का सिस्टम और उसूल कैसा था, यह चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आनी चाहिए। तो इत्तिबा का मतलब नक्शे कदम पर चलना, उसके हूबहू नकल करना। आज हम नक्काली किसकी करते हैं? हीरोओं की, क्रिकेटर्स की, गैरों की आज नक्काली में आज हम बहुत खुश हैं। गैरों की नक्काली छोड़िए, हमें एक ऐसा पाकीज़ा मजहब मिला हुआ है जिस पाकीज़ा का एक हीरो मौजूद है। दूसरी बात है इताअत। जो बात हम और आप कुरान और हदीस की सुनते हैं, उस बात को सिर्फ सुनने तक महदूद न रखना, बल्कि उसे सुन करके अपनी जिंदगी के अंदर उसे नाफिज करना। खुतबे से हर जुमे में बात आती है, नमाज पढ़ो, सिर्फ सुन लिया, बात खत्म हो गई। उसे मान लेना ये इताअत है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कहा, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह ने जो कहा है कुरान में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस में, उसकी इत्तिबा करो, उसकी पैरवी करो, वरना जहन्नम में जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सअत मसीरा।
اللہ کہتا ہے جو بھی رسول کی مخالفت جان بوجھ کر کے کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کرے، نبی کی بات یہ ہے، طریقہ یہ ہے، جان گئے اس کے بعد بھی اس کی مخالفت کریں گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور غیروں کے طریقے کی اتباع کریں گے، غیروں کے راستے پر چلیں گے، اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ہم اسے اسی راستے پر چلا دیں گے اور جہنم تک پہنچا دیں گے۔ تو دو باتیں، اطاعت و اتباع اپنے اندر لازم پکڑیے، ایک بہترین شریعت کے ہم حامل ہیں، اس شریعت کی قدر کیجئے، انشاءاللہ کامیابی، عزت، سرفرازی، کشادگی، خوشحالی ہمارے مقدر ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ ہم سبوں کو کرنے سننے زیادہ ان تمام کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا